Kinds. Recording progress. Sir, we have to write. Yes, yes. Pronoun. Pronouns are of 8 kinds. Pronouns are of 8 kinds. शिवांश बाबू वीडियो ऑन करो जी। हे लवण्या ऑन कीजिए बाबू। लवण्या, अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरा वीडियो Pronouns. सर मैं तो ऑन रखता हूँ मेरा। सर आज मैं ना 11:30 में चली जाऊँ। सर भिजवाइए ना। तनाई एक पेज छोड़ दीजिए बाबू, आपको बाद में भेजवा देंगे। अभी बच्चे को पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कीजिए, बाद में भेजवा देंगे। सर एक पेज नहीं, 6 लाइन। अच्छा ठीक है, 6 लाइन छोड़ दीजिए। सर मैंने 8 लाइन छोड़ दी। Sir, you can start, please. Wait a second, please. Okay, sir. Sir, Sir, you have write reflexive in Yes. sir, I can write. Yes, write down. Sir, I am writing. Sir, Okay. Sir, we use he, see it in that paragraph, in that lines. That is personal. Yes, बेटे, yes. अभी बताता हूँ बेटे, आप लिख लो जल्दी से। Sir, side. सर 2 नंबर पे आप क्या लिखा है? पर्सनल के नीचे पर्सनल के नीचे रिफ्लेक्सिव है बेटे। सर आपने वो क्या लिखा सेकंड नंबर पे आर के बाद? सेकंड RELEXIVE रिफ्लेक्सिव। सर आई कैन राइट। You can write. लिखा हुआ है।
सर 5th नंबर नाम लिखा हुआ है। कौन सा बेटे? Sir, the whiteboard is blurred. Sir, the whiteboard is the blur. सर बस इतना ही लिखवाइए। बस इतना ही लिखवाऊं? सर 8 लिखा है, टोटल 8। ओके बेटे। सर और दीजिए, इतना भी नहीं पढ़ेगा। तो बहुत लिखाते हैं। ओके लगाते हैं। I'm- सर 5th नंबर में कौन सा प्रोनाउन लिखा हुआ है? I am reading this for you. First, we are studying kinds, children. Okay. Pronouns are of 8: personal pronouns, reflexive pronouns, empathetic pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reciprocal pronouns. Okay. Now note down this. ये वाला थर्ड नंबर में था थ्री वाला। empathetic बेटा, EMPATHETIC, empathetic. Noted all? Yes, sir. No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. अभ्या बाबू वीडियो ऑन करो जी। है प्रतीक ऑन करो बाबू। अभिनव आशुतोष ऑन कीजिए। वैष्णवी बाबू ऑन कीजिए। आकांक्षा ऑन कर दीजिए। तो ब्लर दिख रहा है। May I rub this? No, sir, side वाला नहीं। Yes, sir. We're done. Sir, done. No, sir, not done. Sir, not done. Not Sir, done. side. Sir, can you do screen share? Sir, it is. अच्छा बाबू ग्रुप में भेज दिए जी। ग्रुप में भेज दिए, टेंशन मत It लीजिए। is, please. सर पहला वाला भी भेज। Done, sir. Very fine, very fine. Now children, stop. Drop your pens. अपने अपने पेन्स को नीचे रख दो बिल्कुल साथ। रख दिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Now बेटे, Sir, side please. no need to be side. बेटा सर आपको सेंड कर चुके हैं। बाबू अब पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा, नहीं तो फिर सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे। चलिए समझाइए सर। Done, sir. बेटा now we are studying about its kinds. Okay? Definition is clear. Pronoun क्या है ये सारे बच्चों को समझ आ गई अच्छे से? Yes, sir. Sir, पूरा blur आ रहा है. अब बेटा Sir, the देखो video यहाँ। is blurred. Okay, sir will take care of this. Don't worry about that. Now we are studying about kinds. Okay. Pronouns are of how many types? 8 Eight types. Eight types. Okay. Which one is the first one? सर पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun. Personal pronoun. It refers. हाँ बेटा समझ लो इसको। इट पर्सनल, पर्सनल का मतलब ये हो गया किसी पर्सन से रिलेटेड हो वो। ओके, समझ रहे हो? यस सर। यस, पर्सनल। Yes, sir. सपोज ही, शी,
it, name, है ना? It's not name, it, they, we, you, they, these all are personal pronouns. What is the second one? Reflexive. Reflexive pronoun. pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Third one is empathetic pronoun. Third one is Imperative pronoun. Emphatic pronoun. empathetic pronoun. Myself, yourselves, these all are empathetic pronouns. Now relative pronoun. Relative pronoun. Fourth one it is relative pronouns. It shows some sort of relation. Okay. Suppose who, whom, which, etc. Fifth type, that is indefinite. That is indefinite pronoun. Yes. Indefinite. And sixth one it is Emphatic pronoun. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun. Demonstrative. And seventh one it is Interrogative pronouns. interrogative pronouns. And the last one, Interrogative pronoun. Last one. Reciprocal noun. yes. Reciprocal Last, nouns. very well, very well. Reciprocal. So pronouns are of how many types? 8 types. 8 types. Very good, very good. Now अब हम लोग बेटा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक ना? Now we will study in details. Let's see. ग्रुप में सेंड कर दिया हाँ बेटा सर सेंड कर चुके हैं ऑलरेडी. मिल चुकी थी पहले ही. सर रफ कर दीजिए. क्या कर दूं? आंसर So beta, what is the first one? Personal pronoun. Now we are studying in details. Now we are studying in Personal details. pronoun. अब हम लोग बेटा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दोगे सभी बच्चे. Personal pronoun. Sir, we have to Yes. write. No. Okay, sir. Personal pronouns. It refers to. Sir, we have to write later. Yes, beta, later. Sir, we have to write. So we have to write this. Yes, you can write. इसको लिखना है. Yes, Babu. Write down. For example, Sir, this is very blur. Sir, blur आ रहा है. Yes. Sir, blur आ रहा है. sir, do we have to write later or now? Now you can write. सर वो एरो के नीचे लिखना है या वो एरो के बाद भी लिख सकते हैं? एरो के बाद भी लिख सकते हो आप. Sir, I have write down. Yes. Sir, what did you? Sir, not blur. Sir, it's not placed in personal pronoun. No, bete.
Sangeeta don't have English. Sir, we have to draw this. Sir, Yes. Sir, only speak English. सर लाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है। Only speak English. लाइन अच्छे से सर सही है। Sir, सर side थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लाइन अच्छे से, पर पूरा बीच में नहीं दिख रहा। थोड़ा नहीं दिख रहा बीच तो मार्केट हो गया। सर नहीं दिख रहा अच्छे से। नहीं दिख सर रहा बीच अच्छे में से। वो स्लीपिंग लाइन अच्छे से नहीं दिख रहा। लाइन बना देना, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है सब? क्यों है? सर बीच में लगता है वो स्केच मार्कर खराब हो। नहीं है खराब। सर फोकस नहीं हो रहा है। सर फोकस नहीं हो रहा एकदम है। अच्छे से सर फोकस नहीं हो रहा है। सर और सर अच्छे से दिख नहीं रहा है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, वैसे क्लियर दिख रहा है जी। सबसे पहले बेटा यहाँ बोर्ड क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। सर बीच वाला लाइन नहीं दिख रहा। सर साइड प्लीज। जस्ट ए सेकंड बेटा। सर साइड प्लीज। सर फोकस नहीं कर रहा। साइड तो लिखेंगे कैसे? सर साइड। जस्ट अ मिनट बेटे। संगिका अपना म्यूट कर। डन सर। बेटा पहले समझ लो, आप अच्छे से समझ लो। वी आर स्टडिंग पर्सनल प्रोनाउन। वी आर स्टडिंग which pronoun? Yes, in पर्सनल detail. प्रोनाउन। Beta, सर ग्रुप it में ref- सेंड कर दीजिए। Okay, beta. It refers to some person, thing or animal. Personal pronoun जो है बेटा, it refers to either a person, thing or any object. Getting? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी पशु के बारे में बातचीत होती है ना बेटा, तो वो किस प्रोनाउन में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। They are called personal pronoun. अब बेटा नंबर और पर्सन पे मैं बात करता हूँ. How many persons are there? How many persons are there? सर नहीं मैथ। सर साइड। Don't say side. I will not be side. Okay. I will ask you later. पहले आप समझ लो बेटा, फिर बाद में आप लिख लेना. Okay. ठीक है बच्चों? Now look at me only. Okay. How many persons are there? Persons कितने हैं? सर नहीं मैथ। सर 3। There are three persons. First person, second person, and third person. Okay. First person, the speaker. Suppose I am speaking. I am telling you something. So I is the first person. I is the person। in singular number. Okay. And we will be, it is in plural. Second person, the person spoken to. Suppose I am speaking to you, Kirti. Okay. Then Kirti will be second person or first person?
Suppose I am talking to Kriti, then Sir, Kriti she will is say person. Second person. Second person. second person. Very good. And Second second person. And if beta I am talking to Kirti about Sohan, then who is Sohan? Third person. third Very well. person. Sohan is third person, means person spoken of or about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बोलने वाला स्पीकर किस पर्सन में आ गया? फर्स्ट पर्सन. जिससे बोला गया, जिससे बातचीत हो रही है, वो कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन. और जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वो कौन सा First पर्सन हो person. गया? First थर्ड person. पर्सन. गुड. नाउ बेटा इस चार्ट को देखो. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? नंबर्स कितने हैं? 3. नॉट Sir, 3, 3. नॉट 3. सर दिख नहीं रहा मेरे को. मैं बेटा पूछ रहा हूँ आपसे नंबर. नंबर कितने हैं Sir, first. बेटा? दैट इज पर्सन. वो पर्सन हो गया. Sir, alphabet. Sir, alphabet. Number 4. पर्सन आर 3. बेटा Sir, समझ लो. Four. Person, animal, thing, place. पर्सन 3 हो गया. बट आई एम आस्किंग नंबर. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2. 2. वेरी वेल. Two, There are sir. 2 numbers. Two. Singular number and Plural. all of you know about singular number and plural number. Yes, sir. Set to singular plural. Singular plural. Okay, now look at this chart, beta. Look at this chart. There are 3 persons. First person, second person, third person. Okay. There are 2 numbers, singular number, plural number. First person singular number, subjective case, what it will be? I. Plural, we. Second person, it will be you, and in plural also it is you. Come to the third person. He, she, it, and any other singular subject. Any other singular subject, those are classified into third person singular number subject. Now come to plural. They and plural subjects. They and plural subjects. Now you can note down. किसी बच्चे को यहाँ कोई problem? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, can you tell third person one more time? So what you have written after of? Oh, about. It is about. All of you Sir, are Can you tell me about one more time the third person? Can you tell me? थर्ड पर्सन बेटा, द पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सपोज व्हाट्स योर नेम? Yes, sir. Sir, side please. व्हाट इज योर नेम? Sir, Sanvika. Done, sir. Sir, Soumya Singh. Sir, I am Sanvika. Sir, Rabia Trivedi. Sir, Rabia Trivedi. Okay, nice. Now can I rub this? Yes, sir. Yes, sir. No, please, we will take a screenshot, so please hide. ग्रुप में भेज दिए हैं बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं. डोंट मेक ए नॉइज. भेज दिए हैं, वहां से लिख लीजिएगा. Sir, speak English. मेरा भी complete है मेरी. क्या हुआ? Sir, not the sir, DIY is maths and homework is English. Sir will send you, don't bother. Sir, if there is only any homework. Yeah, today I shall set some homework. Sir, can you send it in PDF in group? Yes, sir. Yes. Yes. What? Second Sir. one. What is the second type? Sir, you will give homework? Sir, reflective Reflexive pronoun.
reflexive Sir, pronoun. homework. Reflexive pronoun. The reflexive pronouns example myself, itself. Uh-huh. Sir, we write this now? You can. Okay, sir. सर मैं अब जाऊंगा सर ये क्या दिया हुआ है सर ये क्या homework है? Sir, camera is blurred. सर write down Write Sir, down. what do you have written after used और as? इसे ग्रुप में भेज Sir, Used board is coming, sir. Used as an object of a finite verb. Object of a finite verb. सर कैमरा ब्लर आ रहा है इसे ग्रुप में भेज दीजिएगा अच्छा ठीक है बाबू, राइट डाउन कीजिए, क्लियर आ रहा है। सर ये होमवर्क है Sir, there are 15 minutes left. सर होमवर्क पहले क्लास कर लेते हैं बेटा। Sir, you can teach because there are 15 minutes left. सर साइड सर there are 15 minutes only साइड सर ब्लर आ रहा है Sir, I can write down. Write down. Third side, please. Sir, side. Sir, side. Sir, blur. सर साइड Wait, wait. Sir, side. Sir, side, please. Just a minute. Sir, side, please. Sir, side, please. Sir, side. सर Sir, side. Wait a second. एक Ayo, yay, side, corner. सबको नोट करना है ना फिर इन सब और साइड फिर इन सबको नोट करना है ना नोट करना है बेटे। Done, so.
Sir, I have also done. सर पूरा ब्लर आ रहा है। ग्रुप में भेजे बाबू, वहां से लिखिए जब तक ग्रुप में भेजा हुआ। Sir, blur आ रहा है। ग्रुप में ये सब शैतान है, ग्रुप में भेजे बाबू, लिखिए ना ग्रुप से। जब तक बोलेगा नहीं सबके संतुष्टि ना मिलता है। Sir, blur आ रहा है। Now look, beta. Personal pronoun. I have made you understand personal pronoun के सर बारे साइड में दिया। Don't write. Don't write. Stop writing. Stop writing. Please write down. Sir, please, I have write down. Sir, please write. Sir, please write down. लिख लो पहले। डन सर। होता है। Sir, I have screenshot. माय वर्क इज डन। सर emphatic pronoun का दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? दूसरा एग्जाम्पल बेटा, we have done it ourselves. Oh, sorry. सेल्फ लिख दिए आप। Ourselves will be put here. यहाँ होगा बेटा। Sir, I am correct. Ourselves यहाँ होगा, we ourselves. Okay. Sir, We that are is this Sir, I have doubt. Sir, doubt. out. सर होमवर्क। Sir, बेटा, doubt. Sir, doubt. where is the doubt? Yes, ask me, where is the doubt? Sir, ये reflective noun. Sir, ये reflective noun क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ बेटा, पहले मुझे बता तो लेने दें। बता लूं? Yes, sir. Wait, please. I am writing. Sir, please tell me. Sir, please explain. You have talk. Let me explain first. Let me explain. Yes, sir. Explain me. ग्रुप में भेज दीजिए। बेटा ग्रुप में भेजा जा चुका। No, Reflexive sir. pronoun. Now this is reflexive pronoun. It is used an object. भेजा है। सर इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हिंदी में बोलिए ना। ओके, हिंदी में भी बोलता हूँ बेटा, आप समझ लो, अच्छे से समझ लो बेटा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सपोज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सभी जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं बेटा, और एम्फैटिक प्रोनाउंस भी यही होते हैं। बस अंतर होता है थोड़ा सा यूज का बेटा, आप इसको समझो थोड़ा सा। आप गौर करना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, ठीक है ना, वो बेटा किसी वर्ब का, किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गौर करो यहाँ एग्जाम्पल पे, ही ब्रोक द ग्लास हिमसेल्फ, ही ब्रोक द ग्लास himself, ठीक है। यहाँ बेटा ब्रोक, व्हाट इज ब्रोक? ब्रोक इज फाइनाइट वर्ब, है ना, ब्रोक इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस हैज बीन यूज्ड एट द लास्ट। और हिमसेल्फ वर्ड का यूज कहाँ किया गया है? इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी फॉर सेल्फ, योर सेल्फ यूज में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। और यही जस्ट आफ्टर नाउन और नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, ये सभी वर्ड्स तो वो एम्पैथेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एम्पैथेटिक। लुक एट द एग्जांपल, इसको गौर करो बेटा। वेट, यहाँ देखो, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हर सेल्फ का यूज किया गया है। सी हर सेल्फ लेफ्ट होम। ओके, डिफरेंस को थोड़ा सा समझो बेटा।
Okay, sir. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इम्पैथेटिक में इसका यूज होता है तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज में आता है। ठीक है, जैसे देखो, सी हरसेल्फ कट हर लेफ्ट होम, वी सब्जेक्ट है, इसके तुरंत और बाद। फोर्थ वाला ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ बेटा, भेजा जाएगा, पहले आप इसको समझो। वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आर भेजना आया। चाहिएगा। हेलो, वी के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद आर सेल्फ आया, सो दिस इज व्हाट, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। समझ आ रही है? यस सर। ओके, Yes, sir. I have done, sir, homework. नाउ बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस। डिपेंडेंट, देयर आर टू क्लॉजेज, मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज। ओके, बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। सो इट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए इसका नाम जो है रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है। सपोज सी बाउट द ड्रेस विच सूट्स हर, यहाँ विच जो है बेटा, उसने वो ड्रेस खरीदी जो उसे सूट करता है। ठीक है ना? तो यहाँ विच कौन सा हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन इट इज। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, यू लाइक पीपल हु फॉलो ट्रूथ। आप वैसे लोगों को फॉलो पसंद करते हो जो सत्य पे चलते हैं। तो यहाँ कौन सा वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया? विच वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन? Who? And in the first one, Which? यहाँ कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No sir. Sir, can you tell me the empathetic one more time? Oh, yes बेटे, why not? Because it is very important also। बेटा एक बार मैं फिर से रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक पे आ रहा हूँ। ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं और एक ही है। ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, Sir, आर सेल्फ। सुन लो पहले, आर सेल्फ, ये सभी जो है रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और एम्पैथेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, बट दोनों का यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ प्रो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है। sir, ठीक है ना? doubt. ऑब्जेक्ट उसके बाद है। यस, सर, जितने भी आप ये नाउन है, 8 नाउन दिखाए, ये लिखाए हैं सारे 8 नाउन्स, ये एक ही है। ये वीडियो रुक गया। एक ही है बेटा, कभी कभी आपको 10 भी मिलेंगे, 9 भी मिलेंगे। ठीक है ना? फोर्थ वाला ग्रुप में भेजिए ना। यस सर, जितने भी नाउन है, जितने भी आपने नाउन लिखवाए वो सब एक है सर, एक हाँ। जैसे ही है वो। नहीं, सभी एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग है बेटी। सिर्फ दो जो है एक जैसे है। कौन कौन? रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक। यस सर, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक। हाँ, बस ध्यान ये रखना होता है कि एम्पैथेटिक में सब्जेक्ट तुरंत बाद ये यूज में आता है। ठीक है ना? तो वो एम्पैथेटिक हो जाता है, और जब ये वर्ब के बाद यूज में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल, क्लियर है? सर जाओ। Now, सर नॉट डाउट, क्लियर डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर। फोर्थ वाला ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ बेटा, भेज दिया। भेज दिया प्रतीक बाबू, ग्रुप में भेजा हुआ बाबू। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, No, sir. I have not doubt sir, concept clear. What is the next one बेटा? DIY time. Yes sir, homework time. Next one is relative pronoun, indefinite pronoun.
Relative we have already studied. Now it will be number. Indefinite pronoun. Pronoun. Personal we have studied. Empathetic, reflexive, and relative we have studied. Now it will be fifth one. Now, Sir, indefinite. Good evening, sir. Good afternoon, sir. afternoon. Now it will be indefinite. This is the advanced English class. Indefinite. Sir, DIY time. Sir, कुछ this is the advanced sir, homework time. Yes, sir. Homework. कुछ होमवर्क दे दीजिए सर, वो सबका टाइम हो गया, 12 बज गया ना। होमवर्क वगैरह ये सबको दे दीजिए कुछ। तो ऐसा करते सर। हाँ, कुछ होमवर्क दे दीजिए, बाकी उसका टाइम हो गया। सर PDF में भेज देंगे क्या? कुछ पैराग्राफ राइटिंग छोटा पैराग्राफ। सर PDF में भेज देंगे क्या ग्रुप में? Okay, your homework. Write a short paragraph. A short paragraph. Sir, on school. On. Sir, What we are- have to send it in group. Not see. Bye, sir. What I have written on the board? Write a short paragraph on mango. क्या कर रहा है होमवर्क में? मैंगो आपने देखा है ना, खाया है ना? Write the short paragraph. Sir, my favorite fruit is mango. Yes. Other option. Fruit king is mango. Sir, no. Sir, fruit king is mango. Yes, you have to write paragraph on this. आपको Sir, इसी पे mango is There mango is king of fruit. Sir, mango is king of I'm fruit. saying to sir. I can.